तो मैं सुनील शुक्ला साहब का बहुत स्वागत करूंगा और सुनील शुक्ला साहब के स्वागत के साथ वो जो बाइट अधूरी रह गई थी, कुछ तकनीकी की दिक्कत थी, मैं सुना देता हूँ पूरी वो बाइट है जो उसकी पीड़ा थी, तो सुनिएगा। मैं फिर करता हूँ डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब से सवाल, राकेश जी, और फिर सुनील शुक्ला जी के पास जाऊंगा आज आखिरी में। सुनिएगा ये। Citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, I went past the e-gates, happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, "Look, India, took my name and something and took me out." So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration. The manual counters for the immigration, and then she went on to say, "Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid." Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue. Said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India, very clearly. And they said, "You should apply," and started mocking and laughing and saying things like, "You should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian." Some mockery around there. Then basically they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk. And they would just keep basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, they tell me to go to the immigration tells me to go to them. And they basically didn't give me a straight answer. I said, "Where is the law? What rights have you got to hold me back here?" So ultimately it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. What is shocking to me is I have in fact transited through Shanghai in the past, a year ago, with no issues at all. In fact, the first time that I ever transited through China, I spoke to the Chinese embassy in London, and they said, with a short layover of about 3 to 6 hours, you don't need a visa. आपने सुना ये डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब, ये पूरा मसला है, लंबे वक्त से चल रहा है, 3-4 दिन से हम लगातार इस पे बातें हो रही, चल रहा है सारा का सारा। और उसमें जो मान्य नियम है, मान्य जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो वो है, उसके तहत उसको भी कहीं ओवरलुक किया जा रहा है। और फिर ये सारा कुछ कहना, ये और फिर हमारे यहाँ से रिएक्शन और हमारी जो विदेश नीति, कूटनीति, और हम बड़े बड़े बातें पहले करते हैं, हम एक्सपोज तो पहले से हैं, लेकिन ये और इस तरीके से निकल कर आना और विश्व गुरु दावे, क्या कहेंगे सब पर आप, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा? सर, अगर बेशर्मी से दावे करने में कोई रोक नहीं है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो फिर आप दावे कर ही रहिए। और दूसरी बात यह है कि ये तो सरकार ही दावों की है। वादे पूरे ना हो मगर दावे होते रहेंगे। देखिए, ये जो कूटनीति और विदेश नीति का सवाल है, इसकी तो धज्जियां इन लोगों ने ऐसी उड़ाई हैं भारत की कि आज भारत जो है, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या दशा हुई थी हमारी। वो हिंदुस्तान, वो भारत जो नॉन अलाइन मूवमेंट के वक्त या उसके बाद भी इतना स्ट्रांग रहा कि बाइपोलर वर्ल्ड के भीतर उसकी एक हैसियत हमेशा बनी रही। आज की तारीख में हम अपने लिए समर्थन नहीं जुटा पा रहे। दूसरी बात, अरुणाचल, लद्दाख और बाकी इलाकों की क्या हुआ, ये घटना घटने के बाद विदेश मंत्रालय ने एक रूटीन प्रोटेस्ट जैसा लेटर एक जारी कर दिया। हमारे विदेश मंत्री का कोई अभी तक जवाब नहीं आया। ये वो विदेश मंत्री हैं जो उसी चाइना में एम्बेसडर रहे हैं देश के। हमारे वो प्रधानमंत्री जी जो जिनपिंग के साथ कितने झूले उन्होंने, कितनी चाय पी, कहां घूमे, कहां घुमाया।
उनके जुबान से कुछ नहीं निकला। वो चले आए अयोध्या में झंडा फहराने, भगवा झंडा फहराने। ये जो छद्म राष्ट्रवाद है, मैं कहता हूं कि इनका जो राष्ट्रवाद का नारा है ना, इसकी कुल सीमा भारत का पश्चिमी बॉर्डर है। अब थोड़ा सा पूरब की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर जाने में इनकी हड्डियां कांप जाती हैं। ये सारी बातें कर लेंगे तो फिर नेहरू जी तक चले जाएंगे, मगर उसके बाद जैसा कि शुक्ला जी सर ने बताया कि इंदिरा गांधी के वक्त में क्या हुआ था और राजीव गांधी ने अरुणाचल नाम रख के जिस तरह से एक मैसेज दिया था, पूरी दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, उसके बाद मगर सवाल ये है कि धंधा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शपथ ग्रहण के बाद ही कहा था कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में धंधा है। तो धंधा जब आता है तो बहुत ज्यादा अगर संघी राष्ट्रवादी ताव खाते हैं तो चाइनीज झालरों पर का बहिष्कार करने का एक घोषणा कर देते हैं सोशल मीडिया पे जी, अपने घर पे, वो भी लगाते हैं, मगर उसके बाद उसके आगे इनकी ना हिम्मत है ना औकात है। भाई आप जब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज इस लाइन पर किए रहेंगे तो आप देश के बारे में क्यों बात कर रहे हो यार? फिर तुम अपने बिजनेस के बारे में बात करो ना। देश व्यवसाय से बहुत बड़ा है। निश्चित। हमने देखा किस तरह से, आप चीन को ही देख लीजिए, अमेरिका के साथ जिस तरह से वो डील कर रहा है और आप जिस तरह की स्थिति में पड़े हुए, आप पूरी दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की क्या दशा है इस वक्त। मगर नहीं साहब, राष्ट्रवादी हम ही हैं। तो अब इस मुगालते का, इस झूठ का, इस दंभ का जवाब क्या देना। मगर इतना तो तय है कि ये जो कहते हैं ना कि हम अतीत को लाएंगे, तो अतीत का गौरव तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन देश को खंडहर बना के जरूर छोड़ देंगे, चाहे वो विदेश नीति हो और या फिर हमारी भारतीय समाज। आज संविधान दिवस के अवसर पे आपने क्या किया? 2 दिन पहले आपके संविधान प्रदत्त ताकत, मैं उस पे अगले चरण में आ रहा हूं, मैं अगले चरण में डॉक्टर साहब उसकी बात कर रहा हूं, ये कनेक्ट है इसलिए मैं कर रहा हूं। 2 दिन पहले हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त की हुई ताकत से बना हुआ पासपोर्ट अपमानित हुआ है। यस सर, टिप्पणी फिर मैं उस पे संविधान पे करूंगा, छोटी छोटी। देखिए, एक तो अजय शुक्ला सर ने जो बात कही, मैं अपने आप को उससे जोड़ता हूं, उसमें कहीं कोई दो राय है नहीं, बिल्कुल बढ़िया विश्लेषण है। एसआईआर को लेके उत्तर प्रदेश में कुछ आत्महत्याएं हुई, कुछ मौतें हुई, मध्य प्रदेश में हुई है, पश्चिम बंगाल में बंगाल की तो बड़ी चर्चा है, वो अपनी जगह पे है। और बंगाल की चर्चा जब हो रही है तो उसमें जो भाजपा समर्थित लोग हैं वो ये बताने में कमी नहीं रख रहे हैं कि चूंकि वहां घुसपैठिए ज्यादा है, इसलिए वो सरकार का दबाव है कि नाम उनका नहीं कटना चाहिए। और जो सरकार, वहां की सरकार यानी ममता बनर्जी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतुआ समाज के लोगों को जबरदस्ती फर्जी एक सर्टिफिकेट देके और उनको बाहर किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, यहां पे आज बरेली में और कल गोंडा में 2 मौतें हुई बीएलओस की। और गोंडा वाले बीएलओस ने तो सीधे कहा कि उसके ऊपर ये दबाव था कि ओबीसी का वोट काट दिया जाए। ये उसको एसडीएम और उसके बयान के हिसाब से ये लोग दबाव बना रहे थे। सवाल ये है कि एसआईआर में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वोट काटे जाए। अब तक जो इलेक्शन कमीशन कैंपेन चलाता था वो वोट जोड़े, कोई वोटर छूटे ना, कोई वोटर छूटे ना, ये कैंपेन वोटर जोड़े जाए। और अब ये कहा जाता था कि साहब नया वोटर जो है वो मोदी को बड़ा सपोर्ट कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब जो फर्जी वोटर हैं वो विपक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चित्त भी चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो ये तो वो तंत्र है जो किसी भी चीज को अपने हिसाब से बना लेता है।
और प्रचारित करने के लिए उसके पास एक बड़ा तंत्र है, जो टेलीविजन है, और जो उच्च मध्य वर्ग है वो थका हारा जब घर पहुंचता है तो उस टेलीविजन खोल लेता है और उसी ज्ञान से वो अपना दिमाग बनाता है, और वो बना चुका है, बना रहा है, लगातार बना रहा है। तो ये जो पूरी स्थिति एसआईआर की है, और एसआईआर में जितनी समय सीमा है, देखिए मुझे तो कहीं ना कहीं इस बात में अब ये आने लगा है, कहीं दम दिखने लगा है कि ये एक साथ जो इतने इन प्रदेशों में खास तौर पर जहां पर की कमजोरी दिखाई दी है लोकसभा चुनाव के भीतर, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए सब लामबंदी हो रही है और बहुत ढंग से हो रही है। और आप बिहार में जितने वोट कटे, घुसपैठिया एक और अद्भुत शब्द है, बिहार में घुसपैठिया मिला नहीं। जो विदेशी नागरिक कहे गए उसमें नेपाली निकल गए, वो जो शादी करके आई थी औरतें बॉर्डर के इलाके की, 2-3-4 वो भी मिले, उससे ज्यादा उहान नहीं मिले। मगर घुसपैठिया है, और घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में इस कदर है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री ने टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए पैसे जारी कर दिया जी, कि अब ये एसआईआर में घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। एक हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, मतलब वो अभी भाजपा के राज्यसभा सदस्य है, वो बता रहे, खम ठोक के चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी आ गए हैं, भाई तुम क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली तुम क्या कर रहे थे? सही है, बड़े ताकतवर अधिकारी रहे भाई, आप बड़े जांबाज अधिकारी रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लखनऊ में एसपी सिटी भी रहे। हाँ, और सब जगह नहीं रहे। तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री क्या कर रहे हैं साहब, जिनके हवाले गृह मंत्री, देखिए किया जो कुछ भी किया है वो सब नेहरू ने किया है। यस सर, वही घुसपैठिए छोड़ गए। अभी तो उसको मैं एक घुसपैठिया आप करिए, कंक्लूड करिएगा प्लीज। जी करिए। तो ये एसआईआर एक ऐसा अस्त्र है जहां पे, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये जो मौतें हुई हैं उनके बयान में बता रहा हूं, मैं बिल्कुल कोई अपनी मर्जी से ये बात नहीं कह रहा हूं, बहुत स्पष्ट है। ये बयान ये है कि कहीं ये कहा गया कि जिन इलाकों में विपक्ष को वोट पड़ते हैं वहां के वो काटो, कहीं ये कहा गया कि ओबीसी वोटरों के वोट काटो। तो ये कौन काट रहा है या इसकी जांच होने में, भाई वो तो आदमी मर गया, उसने बयान देके उसकी मौत हो गई, क्या उस एसडीएम, उस डीएम या उस और अधिकारी जो उसके ऊपर है, तहसीलदार, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हो रही है? नहीं, कायदे से होनी चाहिए ना। अगर कोई आदमी जिसकी मौत हो गई और उसका ये बयान है या उसके परिजनों का ये बयान है कि वो बार बार ये बात कह रहे थे, तो कोई जांच तो बैठनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है, या कोई ऐसा संदेश जाना चाहिए जिससे ये भरोसा हो कि ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक।